आज हम लोग ब्रेव सोल्स फाउंडेशन अवेयरनेस कैंप पे हम लोग आए हैं। फाउंडेशन का प्रोग्राम में आया हूँ, सीखने का इच्छा है। Welcome to the City of Joy. Welcome to this conference on acid attacks and sexual and gender-based violence. Well, it might sound that it's a conference, but actually let me say this is not a conference. This is a celebration of life. This is a celebration of joy. This is a celebration of humanity. The power to fight against violence. शायद ही मैं खुद को भी सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद भी यही है और मुझे ये करना अच्छा लगता है। हमने जब ये संस्था स्टार्ट की 2021 में, तो अब हमें नहीं पता था कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। बहुत स्ट्रगलिंग था वो दौर हमारे लिए, बट फॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब आपकी नीयत है काम करने की और आप में वो जुनून है, वो पैशन है, तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। आप एक एक कदम बढ़ोगे तो अंधेरा छटता है, अक्सर हमने ऐसा सुना है, तो मैं भी उसमें बिलीव करती हूँ। मेरा मकसद है हर एक सर्वाइवर जो विक्टिम थी उसको लीडर बनाना, कि कैसे आप अपनी ही जैसी बहुत सारी सर्वाइवर्स के लिए आवाज़ उठा सकते हो, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, शाहीन अकेली नहीं है, अब एक मोनिशा है एक लीडर वेस्ट बंगाल में। जो आप लोग आया है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शाहीन मैम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं भी एक सर्वाइवर हूँ, मेरे स्कार है, पर उसके आगे मेरा लड़ाई है और उसके आगे मेरा जीत है, तो यही लेकर मैंने चल पड़ी। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर हम अगर 2016 से देखते हैं तो रिकॉल फर्स्ट आ रहा है इंडिया में कि कितना एसिड अटैक हो रहा है। जब मुझे हुआ था तब मुझे ऐसा लगा था, लोग आके बोल रहा था कि शायद रिजेक्शन के वजह से होता है, लड़कियों मतलब लड़कों को धोखा देते हैं इसलिए होता है। मुझे भी काफ़ी बुरा लगता था, हमारा अनेक खराब लगता যে কি এমন করলাম যার শাস্তি অ্যাসিড হতে পারে, ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसके लिए मुझे एसिड फेंक दिया गया और जिसको जस्टिफिकेशन भी मुझे देना पड़ रहा है। कोई इसमें से छूट नहीं जाता, बच्चे भी है इसमें शामिल, लड़का भी है लड़की भी है, सब शामिल है इसमें। रुक जाना नहीं, तू कहीं हाके कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। क्यों हो रहा है ये एसिड अटैक, कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोग को बहुत सोचना पड़ेगा। तो আমি টিউশন পড়ে ফিরছিলাম, তো সন্ধ্যা নাগাদ ঠিক আমার বাড়ি পৌঁছে গেছি, 2 মিনিট পর বাড়ি ঢুকবো, সেই টাইমে 1.45 একটা লোক কন্টিনিউ আমাকে স্কুল পথে টিউশন পথে প্রচণ্ড ডিস্টার্ব করতো, নোংরা কুমন্ত্র করতো, বাজে কথা বলতো। তো সেইটা প্রতিবাদ করাতে আমার অ্যাসিড ছোড়ে। তখন বুঝে উঠতে পারিনি যে কি হলো নিজের সাথে, পুরো মুখ জ্বলে যাচ্ছে, মুখে হাত দিচ্ছি মুখের চামড়া হাতে চলে আসছে, काने हाथ दिच्छी कांटा बोले हाथे चले আসছে। अंगूरा के साथ एक भयंकर घटना हो गई कि बेटी हुआ है, इसके लिए उसको एसिड पिलाया गया। আমার এত বড় শাস্তি হওয়া আমার উপযুক্ততা?
মেয়ে কি আমি দিয়েছি? মেয়ে তো দিয়েছে অপরবেলা, তাদেরকে মানুষ করার জন্য বা তাদেরকে চোখ মুখ খোলা ভাবে মানুষ করে তাদেরই করার জন্য। তা আমি কি এমন অপরাধ করেছিলাম ছেলেদের কাছে, তা আমার এই মেয়ে হওয়ার কারণে আমাকে এখনো 14 সাল থেকে এখনো 2025 সাল অব্দি বা এখনো আগামীকাল যদি বেঁচে থাকে আল্লাহর কাছে এখনো আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হবে। যখন আমার ওই মুহূর্তে যখন আমাকে এসেটা খাইয়ে দিয়েছিল তখন এত জ্বালা পরিমাণ করছিল, মনে হয় আমি পৃথিবীতে আর বাঁচব না। দেখুন আমার মা, আমার ভাই, আমার একটা দাদা পাশে ছিল, গ্রামের লোক পাশে ছিল সাইন্টি ম্যাম, তার জন্য এখনো আমি সাইন্টি ম্যামের এই প্রোগ্রামে আসতে পারি বা সাইন্টি ম্যামকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি হিন্দি কথা বলতে পারি তার জন্য, কিন্তু আমি সাইন্টি ম্যামকে মায়ের চোখে দেখি। আমার মা জন্ম দিয়েছে কি হয়েছে, আমার তার চেয়ে দুটো মা একটা সাইন্টি ম্যাম, সেই ম্যাম বা দিদি বা মা আছে বলে আমি এখনো দুনিয়ায় বেঁচে আছি। বা আরেকটা বিয়ে হয়েছে, সেই মেয়ে আরেকটাও হয়েছে আমার, কিন্তু সে পোড়া কপাল যেদিকে যায় সেদিকে গঙ্গ হয়ে যায়, সেখানেও কিন্তু আমার এরকম দুর্দশা চলে। আমাদের বাড়ির পারিবারিক গণ্ডগোলে যে আমাকে অ্যাসিড মেরেছিল সে আমার কাকা আমার সম্পর্কে, আমাদের জায়গা জমি নিয়ে আর কি গণ্ডগোল ছিল। 2013 সালের 13 ডিসেম্বর হঠাৎ আমার খুব পরিচিত দুজন ব্যক্তি পেছন থেকে বাইক চালিয়ে এসে আমার সামনে ঘিরে ঠিক সিনেমা স্টাইলে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে আমার সামনে এসে অ্যাসিড মজুদ করে নিয়ে আমার মুখে ছুড়লো আর টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। लोग हम लोगों को सोच के ये एसिड फेंका है कि हम लोग इसको एसिड फेंके तो ये खत्म हो जाएगा, ये दरवाजे के अंदर चला जाएगा, पर हम लोग उसके बाहर निकल गए। हम इतने दूर निकल गए कि हम लोग कखनो चाइलेও আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एसिड अटैक है, क्या ये नेशनल प्रायोरिटी पे हमको डील करना चाहिए कि नहीं? यही लेके हमारा नेक्स्ट पैनल डिस्कशन है। महिलाओं के खिलाफ काफी अपराध हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो उसमें जो बज़वर्ड है वो है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म और देश की रक्षा कर रही है। तो सवाल ये है कि अगर हम देश की रक्षा कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान चाइना से देश को बचा रहे हैं, तो उस देश को बचाने का क्या फायदा अगर हम अपनी महिलाओं को अपने पड़ोसियों से नहीं बचा पाए। ये समस्या ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग आज यहाँ आए हैं, बहुतों को देखा है, मैं उनका इलाज करता हूँ तो हमें पता है, लेकिन ज़्यादातर समाज इसको कोई बड़ी समस्या की तरह गिनता नहीं है। तो हमें अवेयरनेस ज़्यादा करनी है इसकी, और ये तभी होगी जब हमारे साथ कुछ बड़े प्रिंट हाउस जुड़ेंगे, इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखेंगे, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट होगा, विधानसभा में डिबेट होगा, बड़े कुछ नेता अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। मेरी समझ से किसी भी ऐसे विक्टिम को कम से कम 25-30 लाख से कम का कंपनसेशन तो नहीं मिलना चाहिए। अब हम क्या ऐसा वायदा कर रहे हैं सर्वाइवर से और समाज से और अपने आप से कि हम क्या ऐसा काम करेंगे अगले 1 साल इस मुद्दे से लेकर? I can send my recommendations to different bodies. They can think over that and they can, act accordingly. Social movement against all these types of heinous crimes. More awareness, more discussions. I think that's what we should do in the short term. What's your commitment? My commitment is that I try to empathize on a daily basis. मैं तो वही कर सकता हूँ जो मुझे आता है, तो मैं इलाज कर सकता हूँ, अपनी तरफ से मदद कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ उनके ट्रीटमेंट को सब्सिडाइज हॉस्पिटल से बात करके करा सकता हूँ वो कर सकता हूँ, उनको ठीक लोगों के पास पहुँचा सकता हूँ, वो मैं ऑलरेडी करता हूँ और वो करता रहूँगा। बट एट द सेम टाइम जो मैंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली आ जाए तो हम लोग हॉस्पिटल के मैनेजर पर प्रेशर दे सकते हैं कि ये आप कीजिए। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है और रास्ते में उतारना है, अवेयरनेस करना है। इसीलिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे आपको अधिकार की साथ साथ क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक फ्री इंडिया उस तरीके से एक्टिव
एसिड अटैक फ्री इंडिया को आप चाहते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के केसेस होते हैं और 500 से ज्यादा एसिड अटैक के केस पिछले 5 साल में हुए हैं। तो इसके बारे में क्या लगता है कि मतलब ये केसेस हो रहे हैं, ये किसका फेलियर है? क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है सर? मैं सबसे पहले अपने आप को कसूरवार मानता हूँ कि मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं, और जो जवाब आप मांग रही है पिछले पैनल में भी ठीक से सामने नहीं आया और मेरे पास भी अभी जवाब नहीं है। सिर्फ इतना कहना है कि जो भी हुकूमत वक्त रहती है वो जिम्मेदार है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, अपनी सरकार की जिम्मेदारी मानता हूँ, लेकिन आगे का रास्ता क्या हो, क्यों हो रहा है, कैसे इसको कम किया जाए, इसमें हम लोग सब जब साथ जोड़ के बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस जब तक नहीं फैलेगा तब तक इसका सही हल नहीं। कानून की सख्ती की अगर आप बात करें तो निर्भया के बाद बहुत सख्त कानून इस देश में बना रेप के केसेस में, लेकिन क्या अपराध में कमी आ गई? अगर आप उस पर जवाब मांगेंगी तो नहीं, कमी नहीं है, अपराध तो और बढ़े हैं महिलाओं के खिलाफ। तो वहां पे सवाल होता है कि कुछ तो लोगों की सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, समाज को जागृत होने की जरूरत है। एसिड अटैक करने वाले को ये मालूम होगा कि भाई इतना बड़ा अपराध करके भी हम आराम से 20 साल 25 साल घूम सकते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके मन में भी कोई अपराध को लेके भय नहीं होगा, कोई उसको डर नहीं होगा। मैंने ये देखा है कि जब किसी लड़की के साथ अटैक होता है या रेप होता है या जैसे अभी कलकत्ता में हुआ, तो मीडिया बहुत हाईलाइट करती है, रोज इंटरव्यूज हो रहे हैं, रोज उसके बारे में चल रहा है, पर फिर 2 महीने बाद कहाँ, मतलब कोई फॉलोअप नहीं होता उन केसेस पे। जिन लड़कियों के साथ आज से 5 साल पहले अटैक हुआ था, उन लड़कियों के बारे में आज कोई खबर नहीं आती, उनके केस में क्या हुआ, उनको मुआवजा मिला नहीं मिला, कोई नौकरी है नहीं है, तो फिर वहाँ मीडिया कहाँ चली जाती है? पॉलिटिकल जो खबरें होती हैं या जिनसे बिजनेस मिलता है बात हो, थोड़ा सा उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उस मतलब प्रक्रिया में कुछ ये अहम चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें मेरे को लगता है ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रकाश में आ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि मेरी खुद की गली में दिल्ली में एसिड बेचा जाता है आवाज़ देकर साइकिल पर, और जब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ तो बस एक मैसेज तो ज़रूर आता है कि पुलिस विल बी रीचिंग यू शॉर्टली, पर वो आती नहीं है। तो हम एक बार फ़ोन करेंगे, 10 बार करेंगे, पर रिजल्ट नहीं आता है। देखिए नॉर्मली ओपनली कहीं पर ऐसा सेल नहीं होता है हम लोग के यहाँ पे। वो जो मिलता है बाथरूम क्लीनर के तौर पे वो ज़्यादातर हार्डवेयर की दुकान में मिलता है। अगर ऐसा कहीं वो जो म्यूरिएटिक एसिड जो जनरली मिलता है बाथरूम क्लीनर के तौर पे। फिर से एक सवाल एडवोकेट कबीर से है कि आप काफ़ी एसिड अटैक वायरस के साथ काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, आपको क्या लगता है कि करने की ज़रूरत तो है पर हम क्या नहीं कर रहे हैं? मतलब कहाँ कमी है? सिस्टम में कमी सरकार की है, जुडिशरी की है, पुलिस की है, कहाँ कमी है? सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आप ये मत सोचिएगा कल को आपको जाकर हाईकोर्ट का जज बनना है तो मैं कुछ जुडिशरी के खिलाफ नहीं बोलूँ। एक तो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स है। सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो पुलिस अंडर फंडेड है। पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी बड़ी परेशानियां रही हैं फंड्स को लेके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेके अपॉइंटमेंट्स में। तो एक तो वो है। अगर सिस्टेमिक चीज़ों की बात करें तो पुलिस रिफॉर्म्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। जुडिशियल सेंसिटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जजेस की जुडिशियल अकेडमी जो होती है उसमें भी रेगुलरली ट्रेनिंग होनी चाहिए। एसिड अटैक की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है जुडिशियल अकेडमी। एजुकेशन का जो करिकुलम है उसका इमीडिएटली हिस्सा बना दीजिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ताकि स्कूल से ही बच्चे पढ़ते रहें। इफ आई ओनली टॉक अबाउट लीगल प्रोविजन तो उसमें ये है कि पनिशमेंट इज सफिशिएंट। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, पनिशमेंट तो सफिशिएंट होगी। दूसरा ये हो सकता है क्योंकि एसिड अटैक इतने शॉकिंग है और इतने काम नहीं कराना, तो इनके लिए हम बाय डिफॉल्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट कर सकते हैं कि एसिड अटैक के मुद्दों को फास्ट ट्रैक कोर्ट डील करें। तीसरा
we can have awareness program with the police and with the judiciary and including the public prosecutor and the lawyers. तो आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, आप सेंसिटिविटी प्रोग्राम कर दीजिए पुलिस, लॉयर्स और जजेस के साथ। अगर कोई एसिड अटैक हुआ या किसी लड़की के साथ रेप हुआ तो पुलिस उतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं एक आम लड़की हूँ। पर जब वही बात आ जाती है किसी खास की, लाइक अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी पर मैं बोलूँगी कि जैसे किसी मिनिस्टर की सोने की चेन हो गई तो वो विद इन फ्यू आवर्स मिल गई, तो ढूंढ लिया, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से ढूंढने में लग गई, तो वो फर्क क्यों आ जाता है? तो क्या पुलिस को भी ऐसा लगता है कि क्लास और आम और खास से फर्क पड़ता है? एक्चुअली मैं इस बारे में यही चीज़ कहना चाहती हूँ, हम सभी को बहुत ज़्यादा सोशल अवेयरनेस होना चाहिए और हम सभी को सेंसिटिव और भी ज़्यादा होना चाहिए। बट मैडम आपने मेरा सवाल साइड कर दिया। नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एक होता है तो ये बहुत ही खराब घटना होता है और ये प्रायोरिटी बेसिस में डील करना चाहिए और हम लोग करते हैं। हर जगह ऐसा कोशिश होता है पर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स तो हम टाल नहीं पा सकते। देखिए, मुझे लगता है कि इस पे मैडम पुलिस ऑफिसर जो है वो और हम सारे लोग एग्री करेंगे कि पुलिस से क्या वो काम दिया जा रहा है जो पुलिस का काम है। पुलिस को तो आपने 365 फालतू के कामों में लगा रखा है। कोई नेता की रैली करानी है, उसमें पता चला 1000 पुलिस वाले लगे हैं। जितना उनके थाने का एरिया है उसके हिसाब से पुलिस की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये संभव नहीं मैनेज करना। मतलब प्रैक्टिकल बात हम लोगों को करनी चाहिए कि एक थाने में जितनी पुलिस की संख्या होती है और उस थाने के एरिया की जितनी आबादी होती है, व्यवहारिक रूप से उस पूरे एरिया के अपराध को रोकना या वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। जितनी पुलिस की ज़रूरत है पहले तो उतनी पुलिस की भर्ती होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की भर्ती और पुलिस की संख्या पहली बात तो बढ़ानी चाहिए। अगले 1 साल में आप सभी से जानना चाहूँगी कि क्या वो एक कमिटमेंट करना चाहेंगे कि क्या वो इस कॉज के लिए क्या करना चाहेंगे? Definitely we will try to implement the rules more positively and more stringently. कैलकाटा में जो काम है उससे बड़ा है, मतलब कि ज़्यादा केसेस फाइल कर रहे हैं, कॉम्पेंसेशन के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन भेज रहे हैं सरकार को और सरकार नहीं देती है तो वापस दोबारा केस फाइल करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी मेरे सीनियर्स को कि एक ऐसी पीठ होनी चाहिए जिसमें ऐसे सर्वाइवर्स का मुद्दा जो है बहुत प्राथमिकता के साथ उठाया जाए, ये मेरा ऐसा मानना है। सर नेक्स्ट मेरा सर सर आपसे है कि आप अपने 1 साल के लिए हमें क्या कमिटमेंट देना चाहेंगे और आप तो दूसरों से ज़्यादा देना है। पहला तो ये कि पार्लियामेंट में आपका मुद्दा जरूर उठाऊंगा। दूसरा ये कि सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी मीटिंग कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि दिल्ली के जितने भी प्रमुख मीडिया चैनल हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो उस मीटिंग के बाद। तीसरा काम ये कि जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ आप लोगों की मीटिंग करा दूंगा। चौथी बात ये कि देश के कानून मंत्री के साथ आपकी मीटिंग करा दूंगा जिसमें कि आप अपने कानूनों को लेके क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह के सुझाव आपके हैं वो आप कीजिए। और सिर्फ ये बातों तक ना रहे, अगले साल जब मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ तो मुझसे आप पूरा ग्रिल करके ये सारे सवाल पूछिएगा कि 5 काम मैंने किया कि नहीं। थैंक यू सो मच संजय सर। मैं आपकी आगे की चीज़ को ईमेल पर आपको ईमेल भी करवा जहाँ तक मेरा अपना कमिटमेंट है संजीव जी के साथ मैं भी कोशिश करूँगा पार्लियामेंट को उठाने के लिए। और शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि मेरे एक छोटा सा अखबार चलता है उर्दू का, हमारे नशर। जब भी ऐसे केसेस आएंगे मैं जस्टिस की तरफ, इंसाफ की तरफ से उन केसेस को भी उठाने के वहाँ उभारने की कोशिश
Thank you.